This is Mohammad Mohit. Hope all you are well. Stay home, stay safe. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी. When we have to multiply two rational numbers, the result will also rational. Let's do with example. 2/5 into 3/7 equals to 6/35. दो रैशनल को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमें रैशनल ही मिला. नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. A into B और B into A. We have to interchange the places, then we get the result same in both the cases. Let's do with example. 5.2 into 3/7 or 3/7 into 5.2. After multiplying them, the answer is 15/40 and 15/40. So it is also applicable. Next, associative property. In the associative property, we have take three rational numbers A, B and C, A, B and C. In the first case, we have to multiply B and C and then A. In the other hand, A into B and then C. So let's do this example. After putting the values, after solving this, हमने देखा लास्ट में क्या मिला हमें 21/20 और इसमें भी 21/20. It means it is also hold in associative. Next है distributive property of multiplication over addition. In this case, we have to multiply a rational number to the sum of two rational numbers, or when we multiply A to B or A to C, after adding them, we get the same result. So we have to put the values. After putting the values, we know that कि first of all we have to solve the bracket portion according to BODMAS rule. तो first of all यहाँ हमने क्या solve किया है? Bracket. After solving this, और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है. सॉल्व करने के बाद हमने लास्ट में क्या देखा? 65/45 equals to 65/45. It means it is also applicable in multiplication. The next property, property of 1. In this property, first we have to multiply A to 1 or 1 to the A. We give the same number, same rational number A. Let's do with example. 2/3 into 1 or 1 into 2/3. We give the same number 2/3. Next, multiplicative inverse. इसमें क्या होता है? When we multiply a number, a rational number to its reciprocal, तो हमें आंसर मिलता है 1. देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. A into 1/A. जो 1/A है वो A का रेसिप्रोकल है. इक्वल्स टू 1/A into A. कितना आ गया आंसर? 1. 5 into 1/5 equals to 1/5 into 5. The answer is 1. इसमें क्या करा? 5 से 5 कर लिया तो हमारा आंसर कितना है? 1. चलिए अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स ऑफ डिवीजन. लेट्स चेक विद द क्लोजर प्रॉपर्टी. द फर्स्ट, A divided by B gives C. मतलब we have take these three numbers as a rational. चेक करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या ये वैलिड है या नहीं है. 5/1 डिवाइडेड बाय 0/1 इक्वल्स टू 5/0 और 5/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर. देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड. व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are the integers and Q does not equals to 0. बट यहाँ पे Q की वैल्यू 0 आ गई. इट मीन्स ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती. सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. A डिवाइडेड बाय B और B डिवाइडेड बाय A. लेट्स डू विद एग्जांपल. हमने एग्जांपल लिया, सॉल्व किया, डिवाइड को हमने सॉल्व किया तो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया जैसा आपको पता है. और नेक्स्ट नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है. तो 3/5 बिकम्स 5/3. सिमिलर विथ हियर. आफ्टर सॉल्विंग इट हमने देखा यहां पर आया 5/6 और यहां पर आया 6/5. These are not equal. So it means commutative also not hold in division. Similar with the case of the associative property. It is also does not hold in the division. It means there is no property hold in the case of division of rational numbers. Thank you. अब बात कर लेते हैं रूल्स which are used in multiplication और division. दोनों में सेम होते हैं. तो समझ लेते हैं व्हाट आर द रूल्स ऑफ साइंस इन द रैशनल नंबर्स. व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई टू पॉजिटिव नंबर्स
two positive rational numbers, the result will also come in a positive form. If one negative, one positive, the result will come in a negative form. If one positive, another negative, it is also coming in the negative form. If both are negative, it will come in a positive form. It means when same sign, positive, when different sign, it will negative. यही केस होता है इन द केस ऑफ डिवीजन. डिवीजन में भी यही है, सेम पे प्लस और डिफरेंट पे माइनस. तो दिस इज अ रूल विच वी हैव टू यूज इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. अब कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व द सम्स इन द मल्टीप्लीकेशन. व्हेन वी हैविंग अ नंबर्स लाइक दिस, वी हैव टू मल्टीप्लाई in this order. Then if the numerator is divisible by the denominator, then we have to divide it. If it is not divisible, then we have to multiply numerator to the numerator and denominator to the denominator. numerator की multiply numerator से होती है, denominator की denominator से. अगर ये आपस में divide हो रहे हैं तो हम इसको divide कर देंगे. 2 1 2, 2 2 4. तो answer will come 1/2 if it is divisible. अगर ये divisible नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे. 5 3 15/4. ये 3 नंबर भी हो सकते हैं लाइक दिस, और हो सकता है इसमें से एक नेगेटिव हो. तो अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड इट. लाइक 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3 1. क्या बचा हमारे पास? -2 पर और कुछ नहीं, नीचे बचा हमारे पास 7. तो -2/7 इज द आंसर. तो दिस इज अ क्वेश्चन विच वी हैव टू डू इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. अब बात कर लेते हैं हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन. इफ अ नंबर इज गिवन लाइक दिस एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, इस तरीके से डिवीजन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इफ द नंबर इज गिवन लाइक 15 डिवाइडेड बाय 3, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते थे कि 15 को हम इस 3 से डिवाइड कर दें और सीधे हमारे पास आंसर आ जाता था 5. 5 3 15. ये तो बहुत ईजी होता है करना जब होल नंबर्स या इंटीजर की फॉर्म में हमें दिया होता है. देन वी कैन सॉल्व वेरी इजी. नाउ जब हमारे पास रैशनल की फॉर्म में होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? अब इसको किस तरीके से डिवाइड करें? अब 4/21 की टेबल तो हमें आती नहीं है कि कितने टाइम्स इसमें आएगा. तो आपको करना क्या है, 2/5 को ऐसे ही लिख देंगे. जो डिवाइड का साइन है इसको कन्वर्ट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम लिख देंगे. जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद का जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. रेसिप्रोकल मतलब पलट जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, लाइक दिस. अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे. तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली वैसे ही करेंगे. 2 1 2, 2 2 4. इफ डिविजन हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे आप. ये आ गया हमारा 21/10. ये भी आंसर है और यू कैन कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फॉर्म. तो 10 2 21 और ये आ गया 10. 21/10. इज इट क्लियर? ऐसे ही अगर इसके अंदर मान लेते हैं एक और नंबर आ जाए डिवाइड में ही लाइक दिस, तब आप क्या करेंगे? पहले आप इसको सॉल्व करें फिर इसको, या आप एक साथ भी कर सकते हैं. कैसे? 2/5 मल्टीप्लाई बाई 20/4 मल्टीप्लाई बाई 5/-5. इस तरीके से आप चेंज कर लेंगे. अब ये चेंज किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया, अब ये चेंज किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया. ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं लाइक दिस. अब और कोई अगर डिवाइड हो रहा है तो उसे डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा है तो दिस इज योर आंसर. बाकी कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, ऊपर आ जाएगा 21 × 3/5 × 2 × -5. माइनस साइन ऊपर आ जाएगा. जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो यही होती है कि माइनस साइन को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. तो माइनस ऊपर आ जाएगा तो -63/20, 5 to 10 और 10 5 50. और यू कैन राइट इन द मिक्स्ड फॉर्म. तो -1/13/50 इज योर आंसर. अगर ये डिवाइड होते तो हम इसको फर्दर डिवाइड कर लेते.
Hope all you understand. Thank you.